who have played pivotal role in India's struggle for freedom and its subsequent development. Let us celebrate the day with a desire to learn something from the character of these great personalities of India. Today we, the Student Council members, have the pleasure of conducting today's special morning assembly. So let's begin the day with the morning prayer to offer gratitude to the Supreme Authority for the opportunities of a new day. So join your hands, close your eyes, and with the pure whole heart start the morning prayer. Now let us all join together to pledge our commitment to excellence, integrity,
and unity as a proud member of a proud nation. Therefore, School Cultural in Charge Rajvardhan Singh is here for the pledge. Stretch your right arm and repeat the pledge after me. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Now, it's time to call Malik House Discipline in Charge, Muskan, for the thought of the day. A very pleasant morning to one and all present here. Today's thought of the day is, we may never be strong enough to be entirely non-violent in our thoughts, words and deeds, but we must keep non-violence as a goal and make a strong progress towards it. I repeat my thought, we may never be strong enough to be entirely non-violent in our thoughts, words and deeds, but we must keep non-violence as a goal and make a strong progress towards it. Thank you. We all are aware of the richness of our culture and tradition, and flower offering is a crucial part of our Indian tradition, which is a symbolic gesture of honor and appreciation. So with great honor and respect, I would like to invite the respected Principal Sir and Vice Principal Sir to join us at the front for the flower offering and rending ceremony. I would also like to call the coordinators, Mrs. Neha Malviya ma'am, Mrs. Saroj Singh ma'am, Mrs. Anita Raut ma'am, and Mrs. Alice Matthew ma'am on the stage to join them for the flower offering. Now moving ahead with our today's special assembly, we have a soulful solo performance lined up for you. The title of the song is Bande Mein Tha Dam, which holds a deep significance. And for this special performance, I would like to call Dhan Singh Thapa House Cultural In Charge, Saurya Kishore Verma.
देश पुकारे, आजा रे आजा बापू रे, भूले हमरा है हमेरा दिखाने, आजा रे आजा बापू रे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे निशान से, जालिम कांपे थर 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 सुन के उनका नाम रे। कद था उनका छोटा सा और सर पर उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे पर चलते सीना तान के। बंदे में था दम वंदे मातरम, वंदे में था दम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय है जय है जय है, जय 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 जय। थैंक यू। Now to update us and turn our attention to the latest news highlights, I would call Manekshaw House Captain Prabal Pratap Singh and Manekshaw House Cultural In Charge Astha Singh for the news. Hello. Good morning everyone. Today I, Prabal and Astha are here to update you with the latest news headlines. Starting from international news, a terrorist bomb attack took place near the parliament building of Ankara, Turkey. Secondly, Vivek Ramaswamy, an Indian-American politician and entrepreneur, potentially stands a chance in winning the upcoming presidential elections in USA. Moving towards national news, Swachhata Hi Seva Abhiyan shows tremendous success in which over 32 crore people all over India took part. Secondly, the Victoria and Albert Museum of UK signs a pact for returning Chhatrapati Shivaji's tiger claw to India. Moving towards sports corner, Jyoti Araji upgraded to silver, Tanjinath and Avinash Kret scored silver in badminton as India tally crosses 50. Second, Team India all set for the World Cup warm-up match against Netherlands in India. Now weather forecast, maximum temperature is 33 degrees Celsius, minimum temperature is 26 degrees Celsius, 71% chances of precipitation. Thank you and have a nice day. Today, as we gathered here to commemorate the life and ideas of Father of the Nation Mahatma Gandhi, we are reminded of his unwavering commitment to truth, non-violence and justice. He has played a pivotal role in India's struggle for independence, leading our nation through a transformative era. His principles of peace, truth and tolerance continue to inspire us, and his legacy serve as a beacon of hope and guidance in our life. So, to shed more light on the life and teachings of this remarkable leader, I would like to call upon school head girl Tanvi Rai with a Hindi speech on Mahatma Gandhi.
सुप्रभात। उपस्थित सभी माननीयों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं तन्वी राय गांधी जी पर अपना संबोधन लेकर प्रस्तुत हूँ। चल पड़े जिधर धूप पग डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। हिंदी के मूर्धन्य कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने जिस महान व्यक्ति का वर्णन करते हुए ऐसा लिखा है, वे कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। जी हाँ, वही महापुरुष जो महात्मा गांधी के नाम से विश्व विख्यात हैं। आज गांधी जी के जन्म दिवस को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। करोड़ों लोग उनके बताए मार्ग पर यूं ही चलने के लिए तैयार नहीं रहते थे, बल्कि सत्य और अहिंसा की नीति का उनके पास बल था, जिसका प्रयोग कर उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी का जीवन परिचय तो हम सब भली भांति जानते हैं। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हो, किंतु उनके विचार प्रासंगिक हैं तथा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। गांधी जी के दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है। उन्होंने सत्य की आराधना को ही भक्ति माना। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के प्रेरणा स्रोत गांधी जी ही हैं। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी तथा कर्म से किसी को आहत न करना। उनका विचार था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य। शांति प्रेमी टॉलस्टॉय तथा सर डेविड उनके आदर्श थे। चौरी चौरा में तनिक हिंसा हो जाने पर गांधी जी ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया। काका कालेलकर के शब्दों में गांधी जी सर्वधर्म समभाव के प्रणेता थे। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत और वेदोक्त सर्वम खल्विदम ब्रह्म उनके जीवन का मूल मंत्र था। इसलिए वे बापू और राष्ट्रपिता कहलाए। अंत में एक कविता की सहायता से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। झील ताल सागरों को डांटते हैं क्या करें, झील ताल सागरों को डांटते हैं क्या करें, हंसों को उपाधि गिद्ध बांटते हैं क्या करें। राजनीति के ये खेल देखे नहीं जाते हैं, राजनीति के ये खेल देखे नहीं जाते हैं। बकरियां दहाड़ती हैं, शेर मिमियाते हैं। काक बोले जा रहे हैं, कोकिलाएं मौन हैं। काक बोले जा रहे हैं, कोकिलाएं मौन हैं। और देश को बताया जा रहा है गांधी कौन है। कुर्सियों की होड़ उसे दे रही हैं गालियां, कुर्सियों की होड़ ऐसे दे रही हैं गालियां, जैसे पेड़ की जड़ों पे थूकती हों डालियां। गांधी जो महानताओं की बड़ी मिसाल हैं, गांधी जो महानताओं की बड़ी मिसाल हैं, आज वो हमारे चाटे खाता हुआ गाल है। गांधी पुण्य संगम है जग की सभ्यताओं का, गांधी शिलालेख है पवित्र मान्यताओं का। गांधी तो विशेष है परम विशेषताओं में, जो सदा जिएगा मेरे देश की हवाओं में, जो सदा जिएगा मेरे देश की हवाओं में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now, as we continue today's program, we have our talented choir with a lovely group song. Surely, their melodious voices will resonate with the messages of peace, resilience, and unity that is reflected by these two legends. Without further ado, I am inviting our talented choir on the stage for their harmonious and wonderful rendition.
Join your hands and close your eyes. We all know that it is also the 119th birth anniversary of the famous Indian leader, our second Prime Minister, Sri Lal Bahadur Shastri. On this day, let us remember the principles and values that he stood for: simplicity, honesty, and the unwavering commitment to the welfare of the nation. Now, to make us aware of the life and legacy of this remarkable leader, I would call School Sports in Charge, Adarsh Singh, for English speech on Sri Lal Bahadur Shastri. Good morning to respected Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers and all my dear friends. Today I, Adarsh, stand before you to speak about one of the most beloved and humble leader of India, Lal Bahadur Shastri. A man whose life was committed to the service of our nation and whose principles and values inspire the generations too. Lal Bahadur Shastri was a man of simple beginnings but possessed over wisdom and great commitments. He was born on 2nd October 1904 in a small town of Mughal Sarai. From these humble origins, he rose to become the second Prime Minister of independent India. One of the most iconic aspects of Shastriji's leadership was his emphasis on simplicity and humility. He once said, "Jai Jawan, Jai Kishan," which translates, "Hail the farmer, hail the soldier." These simple words showed his vision for the strong and self-reliant India. He recognized the importance of farmers and our soldiers who are the backbone of our nation. His words continue to echo in our hearts, reminding us the significance of these two pillars which they play in the society. During his tenure as the Prime Minister of India from 1964 to 1966,
he faced numerous challenges, which includes the shortage of food in India. To boost the agriculture sector, he asked the citizens to avoid or to appeal the citizens to skip a meal once a week to save the food for the needy people. In one of his most famous speeches, Shastri said, "We believe in peace and peaceful development, not for ourselves, but for the people all over the world." These words reflected his commitment to maintain peaceful relationship with other nations, even during the time of tensions. His relationship during the Indo-Pak War of 1965 demonstrated his resolute determination to defend our country while also seeking a peaceful resolution for the conflict. Shastri's sudden demise in Tashkent and just after signing the Tashkent Agreement with Pakistan remains a deep sorrow for us as well as our country too. Shastri Ji was a man of great character and conviction. His life, leadership continue to inspire us. The values that makes our nation strong. As we remember him today, let us strive to uphold the principles he held and work together for a better country and self-reliant India as just he envisioned. Thank you and Jai Hind. Now moving forward, I would like to remind you that we were celebrating Swachhata Pakhwada last week, and this assembly resembles the crucial message that resonates with the essence of our lives, that is Swachhata or cleanliness. It is not just a practice, it is a way of life that contributes to our health, well-being and environment. So to make us understand the significance of Swachhata and its role in our lives, I would like to call School Discipline in Charge Akash for a speech on Swachhata. सुनो गौर से भारतवासी, मिली आजादी अच्छी खासी, लाभ हो इस आजादी का तब, स्वच्छ और साफ बने भारत जब। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आकाश निषाद आज आपके समक्ष स्वच्छता पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ वातावरण का होना बहुत ही जरूरी होता है। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बात सच है कि हर बच्चों को अपने घर में स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है, पर हमें केवल इसका पालन घर तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इस अपने आसपास के पर्यावरण और देश के हित में भी स्वच्छता का उपयोग करना चाहिए। इसी का ध्यान रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर शुरू किया गया। यह अभियान नई दिल्ली के राजघाट से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई योजनाएं शामिल हैं, जिसमें प्रमुख ग्रामीणों के घरों में शौचालय निर्माण है, जिससे लोग आसपास की स्वच्छता को समझेंगे और वातावरण स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छता की महत्व से कोई अनजाना नहीं है। हाल ही में अभी कोरोना काल में रोगियों की बढ़ती जनसंख्या एवं अस्पतालों में साफ सफाई को ध्यान देने की आवश्यकता से यह बात और भी स्पष्ट हो गई है कि जीवन में स्वच्छता की कितनी जरूरत है। सामान्यतः स्वच्छता 2 तरह की होती है, पहली शारीरिक स्वच्छता और दूसरी मानसिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता हमें बाहर से साफ रखती है और हमें आत्मविश्वास के साथ साथ सुखद अनुभव प्राप्त कराती है, मगर आंतरिक स्वच्छता मानसिक शक्ति प्रदान करती है और चिंताओं से दूर रखती है। आंतरिक स्वच्छता से आशय है मस्तिष्क में खराब, बुरे और नकारात्मक सोच की अनुपस्थिति। जब कोई व्यक्ति बाहरी और आंतरिक सभी तरीकों से स्वच्छ होगा तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा। गांधी जी के सपनों को मोदी ने सम्मान दिया, संकल्पित हो राष्ट्र के प्रति स्वच्छ भारत का अभियान दिया। लज्जा दूर भगाने को हम सबको मिलकर आना है।
लज्जा दूर भगाने को हम सबको मिलकर आना है, राष्ट्र के निर्माण में बस एक कदम बढ़ाना है। स्वच्छता ही सेवा माना है, जन जन ने अब ये जाना है, बापू का देश बनाना है, हम सबने मन में ठाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A function without a dance feels a bit desolating. So here comes a talented and dedicated team of dancers from primary wing with a group dance on Mati Pukare, Desh Pukare. So let's bring them on the stage with a thunderous round of applause. माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम रहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहनी लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरी तरफ से आप सबके लिए बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। धन्यवाद। Now coming to the end of the today's celebration, I feel really privileged and honored to invite the respected Principal Sir to the stage for his words of wisdom and incite the values and principles that this great leader stood for. Please, sir. A very good morning to one and all present here. Dear students, worthy teachers, vice principal, coordinators, and all the staff members. ये सारा कार्यक्रम करने के बाद मेरे को माइक पकड़ाते हैं गाली सुनने के लिए।
पता है बच्चे थक गए हैं, इतनी देर से खड़ा कर रखा है, फिर भी पकड़ा देते हैं माइक। सर कुछ बोलना है अब आपको, है ना? आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या इतनी देर से खड़ा कर रखा था, अभी और प्रिंसिपल ये आ गया, अभी चाटेगा हम लोग को बेकार में, है ना? कितने सोच रहे थे ऐसे? कितनों की फीलिंग देखो बाहर निकल करके आ रही है, बिल्कुल इतने खुश हो रहे हैं कि मतलब प्रिंसिपल ने कैसे जान लिया कि हमारे मन में ऐसा फील चल रहा है। पहले इन बच्चों को मैम प्लीज बैठाइए, ये बच्चों काफी मुझे लग रहा है पैर दर्द हो रहे थे कई बच्चों के, इधर बैठा दो इनको। This is a testing for everyone who they fallen down or cannot stand properly, including some of the teachers too. I have seen that cannot stand for the time. That means you are not fit. If you cannot stand for 1 hour, how you will stand for the nation? You are going to celebrate the birth anniversary of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri, and both were one of the strongest leader of the world. Strongest leader. Do you know? I hope that you heard about Mahatma Gandhi a lot. हर कोई महात्मा गांधी के बारे में बात करता है, and दुर्भाग्य ऐसा है कि आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है, बट उनके बारे में बातें बहुत कम होती हैं। पहले तो लोग भूल ही जाते थे, कोई शायद लाल बहादुर शास्त्री को सेलिब्रेट ही नहीं करता था, बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता था, हम लोगों के टाइम में भी ऐसा हुआ है। बट लाल बहादुर शास्त्री वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी, आई फील पर्सनली। क्या स्ट्रॉन्गेस्ट था? ही वॉज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पर्सन, सिंपलेस्ट पर्सन। आपको कुछ उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं बताता हूं, शायद आपको कुछ प्रेरणा मिले। ये इको बहुत ज्यादा हो रहा है, कम करिए इसको। लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, और जब वो रेल मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने कभी अपनी मां को यह बताया नहीं कि वो रेल मिनिस्टर है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी मां बहुत सिंपल थी, और जो भी उनके घर पर आता था कोई ना कोई सिफारिश लेकर के आता था, तो उन्होंने अगर बता दिया होता कि मतलब ये मैं रेल मिनिस्टर हूं, और अगर उनकी मां कोई सिफारिश करती तो शायद वो उसको मना नहीं कर पाते। तो उनकी मां उनसे पूछती थी कि तुम क्या नौकरी करते हो लाल? तो वो बताते थे कि मां मैं क्लर्क हूं रेलवे विभाग में, और क्लर्क की नौकरी करता हूं। बिल्कुल लास्ट ऑफ द मिनट्स में उनको पता चला उनकी मां को कि ही इज द रेल मिनिस्टर, तो वो बड़ी नाराज हुई, तुमने बताया नहीं, कुछ लोगों का भला हो जाता। बोले मां इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम तमाम लोगों की सिफारिश करती, और उससे मुझे मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ता, या नहीं करता तो आपका अपमान होता, और करता तो देश का अपमान होता। That was the thought process of the Lal Bahadur Shastri. When he was a student लाइफ में उन्होंने जो स्ट्रगल किया वो आप लोगों को करना नहीं पड़ता है। आप 1 घंटा खड़े होने में प्रॉब्लम फील कर रहे हो, जबकि आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ने जाया करते थे उनके पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, नदी पार करनी पड़ती थी, और नदी बारिश का समय था, बाढ़ आई हुई थी नदी में, और नदी पार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वो नदी तैर करके पार करते थे। जब उन्होंने छलांग लगाई नदी में तो नाव वाला बोला अरे डूब जाएगा, कहां जा रहा है? तो बोले मेरे पास आजा, नाव पर आजा। बोले नहीं मेरे पास पैसे नहीं। बोला मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा। बोले ना, मैं बिना पैसे दिए नाव पर बैठूंगा नहीं, मैं तैर करके जा सकता हूं। और तैर करके नदी पार की, गंगा पार करके, और तब वो पढ़ने जाते थे। और जब तक प्रधानमंत्री रहे कभी उन्होंने कोई भी वैभव विलास अपनाया नहीं। दैट इज द स्पिरिट, दैट्स व्हाई वी रिमेंबर हिम। आज मैं थोड़ा टाइम और लूंगा आप लोगों का, और आज मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, जो कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो।
हम लोग जब विद्यार्थी थे तो एक चैप्टर हुआ करता था, आई रिमेंबर क्लास 7th 8th में आई थिंक, या 9th 10th में था, आई थिंक 9th 10th में, बाबा भारती का घोड़ा। आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है कहानी? किसी भी बच्चे ने? नहीं, बच्चों की बात कर रहे हैं सर, टीचर्स ने तो पढ़ी होगी, जो हमारे साथ हैं उनको तो निश्चित तौर पर मौका मिला होगा, आप बच्चों ने नहीं पढ़ी है। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, और आज इसका आपको सुनाने का कुछ विशेष प्रयोजन है। जो आप चीजें भूल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसके बिहा पर अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप बैठ जाएं कंफर्टेबल, जहां भी आप बैठना चाहें बैठ जाएं, थोड़े कपड़े गीले होंगे, नो इशू। अभी थोड़ी देर बाद आपको घर जाना है, जिनके भी पैरों में तकलीफ हो रही है, अगर आप बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, जो खड़े रहना चाहते हैं खड़े रहें, बिकॉज आई विल टेक लिटिल टाइम। Okay. So now please listen me. Now please pay your attention here. Please don't talk. आपस में बात नहीं करो। अगर आपको बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं बैठना है तो खड़े रहो। ओके। तो बाबा भारती का घोड़ा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक गांव में रहा करते थे। उनका नाम था बाबा भारती। वो बाबा भारती के नाम से ही फेमस थे और गांव के लोग उनको बाबा के नाम से बुलाते थे। उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था, बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा था, और बाबा भारती उसको अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उस घोड़े का नाम था सुल्तान। सुल्तान की चाल देखकर अच्छे अच्छे लोग मोहित हो जाते थे। उसके गर्दन पे जो बाल थे ना, वो जब दौड़ता था, रेस लगाता था, तो बाल ऐसे लहराते थे कि पूछो नहीं। बाबा भारती को अपने घोड़े पर बहुत नाज था, और उस घोड़े की ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी, और घोड़े की ख्याति इतनी फैली कि महाराज भी उसको खरीदने के लिए तैयार थे। बट बाबा भारती को घोड़ा अपने बच्चे से भी ज्यादा प्रिय था, और उन्होंने उसको बेचने से मना कर दिया। उसी इलाके में एक डाकू रहा करता था, डाकू खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो डाकू खड़क सिंह उस समय में हुआ करता था, और डाकू खड़क सिंह के पास भी उस घोड़े की ख्याति पहुंची। और एक दिन वो वेश बदल करके बाबा भारती के घर आया, और बाबा भारती से मिलने के बाद कहा कि मैंने सुना है आपके पास एक बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है, मैं उसको देखना चाहता हूं। और बाबा भारती की वो एक कमजोरी हो गई थी, जैसे किसी की कमजोरी होती है ना, कि कोई अच्छी चीज आपके पास है, कोई आपकी तारीफ करेगा, सुना यार तुम्हारे पास बहुत अच्छा लैपटॉप है, जरा दिखाना, तो तुम बड़े खुश हो जाते हो, अरे वाह क्या बात है यार, हाँ अभी दिखाता हूं। तो बाबा भारती की ऐसी ही कमजोरी थी। उनके घोड़े के बारे में कोई भी कुछ भी बात करता था ना, तो बिल्कुल खुश हो जाते थे, एंड दैट्स व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट। तो बाबा भारती बोले जरूर जरूर चलो दिखाता हूं तुम्हें। ले गए। डाकू तो डाकुओं के पास भी घोड़े होते थे, तो उसको सवारी करना आता था। बोला बाबा थोड़ी दूर मैं सैर करके आना चाहता हूं। बोले बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उसकी जीन कसी, जीन समझते हैं, उसके पीठ पर जो बैठने के लिए सीट लगाई जाती है उसको कहते हैं जीन। जीन कसी और बोला कि ठीक है दौड़ लगा करके आओ। खड़क सिंह घोड़ा लेकर के गया और लौट करके आया, काफी दूर दौड़ा करके ले गया। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि उस समय में डाकुओं का भी एक मॉरल होता था। पहला मॉरल सीखिए, डाकुओं का भी एक मॉरल होता था उस समय में, कि अगर उन्होंने कहा कि हम घोड़ा लेकर के जा रहे हैं, लौट करके आते हैं, तो लौट करके आते थे। वो लौट करके आया, बहुत खुश हुआ, बोला बाबा अब मैं अपना परिचय देता हूं आपको, मैं डाकू खड़क सिंह हूं। बाबा की हालत खराब। बोले मुझसे क्या चाहते हो? बोले बाबा ये घोड़ा आपके पास किस काम का, ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। बोले नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। बोला बाबा देखो मैं चाहूंगा तो छीन करके ले जाऊंगा। बोले तुम कुछ भी कर लो, जब तक मैं जिंदा हूं घोड़ा दूंगा नहीं। डाकू खड़क सिंह ने कहा आज से 15 दिन के बाद ये घोड़ा मेरा होगा और मैं आपसे छीन करके ले जाऊंगा। अब बाबा की रातों की नींद गायब, बेचैन हो गए।
चैन से सोते नहीं थे, उनको नींद नहीं आती थी, रात रात में उठ करके घोड़े की निगरानी करते थे। ये दूसरा मॉरल है। जब भी आपको किसी से लगाव हो जाता है ना, यानी पैशन, जब आपका डेडिकेशन इस लेवल पर होता है तो आप कभी भी सो नहीं पाते हैं। उनको बेचैनी रहती थी कि ऐसा ना हो रात में कोई घोड़ा खोल करके ले जाए। रात भर पहरेदारी करते थे, परेशान रहते थे। 10 दिन बीत गए, 11 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए, 15वां दिन भी आ गया। बाबा घोड़ा लाठी लेकर के खड़े कि आज कोई भी आएगा तो मरो मारो की स्थिति करेंगे, बट जाने नहीं देंगे घोड़ा। 15वां दिन भी बीत गया। अब बाबा को थोड़ा सुकून मिला। बोले यार 15 दिन हो गया, डाकू ने कहा था 15वें दिन ले जाऊंगा, 15 दिन निकल गया, मतलब अब नहीं जाएगा मेरा घोड़ा। He got relaxed। और रिलैक्स होने का मतलब था कि वो घोड़ा लेकर के टहलने निकले। जब घोड़े की सवारी करके वो टहल करके थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देखा रास्ते में एक भिखारी पड़ा हुआ है, हाथ पैर उसके गंदे, कंबल ओढ़े हुए और करा रहा था। बाबा बड़े दयालु थे, उसके पास पहुंचे। बोले क्या हो गया आपको? बोला बाबा दूर गांव का रहने वाला हूं, रास्ते में तबीयत खराब हो गई और पैसा भी नहीं है, बहुत गरीब हूं। अगर आपकी मदद हो जाती तो मैं अपने गांव तक पहुंच जाता, गरीब असहाय हूं। बाबा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, चलो। घोड़े पर बैठाया उसको और लेकर के धीरे धीरे पैदल चलने लगे। 2-4 कदम ही चले थे कि अचानक बाबा के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और घोड़ा तेजी से आगे बढ़ गया। और कंबल नीचे गिराते हुए डाकू खड़क सिंह बोला, बाबा मैंने आपसे वादा किया था, अब ये घोड़ा ले जा रहा हूं। बाबा की तो जान हलक में आ गई, यार घोड़ा मेरा जा रहा है। बट नाउ द थर्ड मॉरल ऑफ द स्टोरी। बाबा भारती ने कहा कि खड़क सिंह तुम घोड़ा ले जाओ, अब मैंने मान लिया कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में हो गया तो तुम्हारा है, तुम घोड़ा ले जाओ। लेकिन इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, किसी को भी इस घटना के बारे में बताना नहीं। कौन सी घटना? कि तुमने मेरा घोड़ा ऐसे छल से छीना है। किस वेश में? गरीब असहाय भिखारी के वेश में। खड़क सिंह घोड़ा आगे बढ़ा लेकिन परेशान हो गया। बोला बाबा ने ऐसा क्यों कहा? फिर घोड़ा मोड़ करके आया, पूछा बाबा ऐसा क्यों? बोला खड़क सिंह अगर तुमने ये घटना किसी को बता दी तो कल से लोग भिखारियों पर और गरीब असहाय पर भरोसा करना बंद कर देंगे और उनकी मदद नहीं करेंगे। तुमने एक कैरेक्टर को गलत तरीके से डिफाइन कर दिया है और आने वाला समय ऐसा होगा कि कोई भी गरीब को मदद नहीं करेगा, कोई उसको भीख नहीं देगा। डाकू खड़क सिंह घोड़ा लेकर के चला गया। और आप आज देख लो, आप कहीं भी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हो, सड़कों पर ट्रेवल कर रहे होते हो, थैंक यू, तो क्या होता है, कोई ना कोई आपके गाड़ी के आसपास आकर के खड़ा होता है किसी चौराहे पर, किसी जगह पर, और चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कोई ना कोई भीख मांगने आ जाता है। 90% टाइम क्या होता है, आप भीख देना नहीं चाहते हो, अरे यार ऐसे ही घूमते रहते हैं सब। माइट बी समवन इज वेरी नीडी, बट फिर भी आप नहीं देना चाहते हो क्योंकि आपका वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है। समझे आप? अगले दिन बाबा जब घर पहुंचे तो अब घोड़ा तो जा चुका था और 15 दिनों से चैन से सोए नहीं थे, तो खूब चैन से सोए। तकलीफ थी उनको, लेकिन घोड़ा चला गया तो अभी चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी तो जो जाने वाला था वो चला गया। खूब चैन से सोए और अगले दिन जब सुबह उठे तो सुल्तान की हिनहिनाहट उनको सुनाई पड़ी। बोले अरे ये तो सुल्तान की आवाज है। और पहुंचे और जाकर के अस्तबल में देखा तो सुल्तान खूंटे से बंधा हुआ था। आश्चर्यचकित। और बाबा का तो जैसे मतलब जिगर का टुकड़ा वापस मिल गया, तो बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कैसे ऐसा संभव हुआ? दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो मैंने कहा ना कि डाकुओं का भी एक मॉरल रहता था, उस डाकू को बाबा खड़क सिंह की बात समझ में आ गई कि मैंने क्या गलत किया है। मैं बाबा की गर्दन काट करके ले जाता तो लोगों को पता होता कि हाँ डाकू ने मारा था और डाकू मार करके ले गया, बट मैं गरीब भिखारी के वेश में ले गया, मतलब मैं गरीबों का हक मारने जा रहा हूं। इसलिए उसने घोड़ा वापस किया। ये आपके ऊपर भी लागू होता है। आप सबको अपने कैरेक्टर को इस तरह से बिल्ड करने की जरूरत है, एंड दैट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री, that you decide your character by such a way, a strong character by such a way that there should be no any other mask over there. आप घर में झूठ बोल देते हैं, बाहर झूठ बोल देते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल पहुंचते ही नहीं है, स्कूल से बाहर गायब हो जाते हैं। Not everyone, but few of the cases are there. 2-4 केसेस ऐसे हैं, 2-4-10 बच्चे ऐसे होते हैं हर जगह पे जो इस तरह का काम करते हैं। तो what is your duty, what is your responsibility is only the study. For that your parents are sending here. अगर आप वो भी काम ढंग से नहीं कर सकते हैं जो आपको ड्यूटी दी गई है, जैसे बाबा भारती अपनी ड्यूटी कर रहे थे ना, 15 दिन सोए नहीं, तो आपको कम से कम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो ढंग से पढ़ना चाहिए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन है। जब तक आपका चैप्टर तैयार ना हो जाए तब तक आपको चैन नहीं पढ़ना चाहिए। आपका कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए स्ट्रांग कि एक बार जो आपके ऊपर ट्रस्ट करे दोबारा डिस्ट्रस्ट ना कर सके, क्योंकि आपने अपना कैरेक्टर एक बार क्लास में खराब कर लिया, एक बार टीचर ने मान लिया कि आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, तो फिर जीवन भर आप अपना रूप ठीक नहीं कर सकते। जीवन भर आप उसको डिजाइन को बदल नहीं पाएंगे। जिस भी बच्चे के बारे में हमें एक बार परसेप्शन हो जाता है कि ही और शी इज नॉट फिट, फिर उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो प्लीज डिसाइड योर कैरेक्टर बाय टुडे ऑनवर्ड दैट यू आर द वन ऑफ द बेस्ट, एंड you have to do the things in that way. That is the real tribute to our leaders. I request you all that please ensure that your classrooms are neat and clean. It is your responsibility. We not have this responsibility to call you कि चलो क्लास बंद करके बाहर आओ। एनी टाइम whenever you are coming on ground, it is your ground. Whenever coming in the class, it is your class. When going to music room, it is your music room. Infirmary, anywhere you are going, wherever you are going, that is your area. It is your school, and neatness of the school is your responsibility. So make sure that you are going to make it neat and clean. मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे आप पे नाराज होने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं चलो सब बाहर आओ, क्लास बंद करो, तुमने गंदा कर रखा है, तुम्हें साफ करने की जरूरत है। नो, nobody is required to say anything to you. Then there is a meaning, because आपकी पढ़ाई बिल्कुल तीसरे नंबर पर आती है। मैंने पहले भी बताया है, फिर आप सबको बता रहा हूं। There is a theory that called ASK theory, ASK. A for attitude, S for skill, and K for knowledge. So attitude is the first thing, knowledge, skill is the second thing, and knowledge is the third thing. आज हम आपको प्रेशराइज करते हैं, पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं, पढ़ लो, कितना पढ़ना है, अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, आई लीस्ट बॉदर, बहुत अच्छा नंबर नहीं आता, ओके ठीक है, बट इतना आना चाहिए कि आप अपने मन से पास हो, आपको सिफारिश ना करनी पड़े। सर प्लीज इस बार कंसीडर कर लीजिए, मुझे 8th में भेज दीजिए, मुझे 7th में भेज दीजिए, अगली बार से आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना पढ़ो कि आपका जो अगला क्लास है वो आपको बिना किसी सोर्स के, बिना किसी सिफारिश के, बिना सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के आपको मिल सके। प्लस इसके साथ साथ स्किल्स डेवलप करो। वी आर हैविंग म्यूजिक, वी आर हैविंग आर्ट, वी आर हैविंग रोबोटिक्स, वी आर हैविंग AI लैब, वी आर हैविंग कंप्यूटर लैब्स। सो डेवलप सम स्किल। वी आर हैविंग फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब। डेवलप सम स्किल which may help you in future. More subjects we are starting, more subjects we are offering, which will give you the better skill. And your attitude is required to be the best. Your behavior is required to be the best. Please take care for the children. Saroj ma'am, please take the girl.
देखिए देखिए, पकड़ो यार, क्या आप लोग मेल टीचर खड़े हो उसके बाद भी संभालिए बच्चे को, प्लीज टेक केयर। बच्चों, जब आप कहीं असेंबली में खड़े होते हो ना, अपने पैरों के अंगूठे अंदर जूते के अंदर मूव कराते रहा करो, उससे आपको कभी भी चक्कर नहीं आएगा। पैरों के अंदर आपके जो अंगूठा और उंगलियां है ना, उनको मूवमेंट कराते रहना चाहिए, तो इस तरह की कंडीशंस कभी नहीं आएंगी। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, प्लीज आज का जो मॉरल मैंने आपको सिखाया, रिमेंबर इट एंड डू द नीडफुल टू चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर कैरेक्टर, change your picture in front of your teachers, in front of your parents, in front of the society, so that everybody had to say, yes, that's a wonderful child, one of the good child. Thank you. Jai Hind. Now, I would request everyone to stand in unity to honor our country with pride and respect by singing the national anthem. Attention! Stand at ease. Attention! Start the national anthem. शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जया गाथा।